Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have seen theorems 10.6 and theorem 10.7. Now I'm going to take an example in this video, then further we will move on to the exercise. So you can see the example will give the use of theorem 10.7, right? So that will show you how to actually apply the theorem 10.7. So just observe the example carefully, right? Then we will further move on to the exercise. So you can see starting off this video, you can see with example number 2, here it is written that if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, then prove that the chords are equal. So ये question जो है सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए I have drawn a diagram here. You can see here यहाँ पे दो chords हैं A, B and C, D जो कि इस point पे intersect कर रही हैं, right? So let me just tell you that here you can see there are two chords which are intersecting at a point. Then let me just tell you कि ये एक PQ diameter है जो कि इन दोनों chords के point of intersection में से pass out हो रहा है. You can see. So this is given in the question कि दो chords हैं A, B and C, D which are intersecting at a point, and you can see there the diameter is then passing through that point of intersection, right? So what we have to prove is that the length of these chords A, B and C, D is equal, right? So let me first write here that the solution will, what we have to prove here is that AB is equal to CD, right? Then let me just tell you the given thing here is यहाँ पे ये जो diameter है वो इन chords के साथ ये जो angle बना रहा है, you can see. So ये जो chords और diameter के बीच में जो angle है ये क्या है, हमें given है कि equal है, right? So यानी कि ये जो angle है AOQ that is given equal to DOQ, right? So let me just write that. So angle AOQ is given equal to angle DOQ, right? So अब यहाँ पे जो जरूरत है that is, let me just first do a construction here. This is the center of the circle, remember that, right? So you know that the diameter passes through the center of the circle, so this is the center O here. अब यहाँ पे जो construction करने वाली है, that is, I'm going to draw a perpendicular line from the center of the circle to these two chords A, B and C, D. How so? Let me just show you. So यहाँ पे मैं एक perpendicular line draw करूंगा, this and this perpendicular line here, right? So यहाँ पे ये जो perpendicular है इनको मैं नाम देता हूँ L and M, right? So यहाँ पे जो OL है, so draw OL and OM perpendicular to AB and CD respectively, right? So this is the construction what we have to do here. So let me just check a little thing here, the point here. So here I'm going to take this point as E, right? So let me just mark this point as E. Now you can see the point of intersection of the chords is E, from which this diameter is also passing. So यहाँ पे जो दो triangles बन रहे हैं छोटे आपको नजर आ रहे होंगे OLE and OME, right? So अगर मैं इनको अलग से यहाँ पे draw करके दिखाऊं आपको, so that will be like this, and you can see then OLE and OME, right? So जो हमें prove करना है, you can see here that is the length of these chords AB and CD is equal, right? So हम कैसे start करेंगे? Let me just start off the proof here. So सबसे पहली चीज अगर मैं इस triangle की बात करूं OLE, right? So आप देख सकते हैं ये angle कितने का है, 90 डिग्री का, right? So this angle is given to us as 90 because मैंने यहाँ पे construction में आपको बताया कि हमें perpendicular draw करना है OL and OM. So ये 90 डिग्री का angle है, हमें पता है. So these two angles are 90 degree. Now बात करते हैं इस triangle OLE की. So in triangle OLE मुझे पता है by angle sum property
तीनों एंगल्स का जो सम होगा इनका इस ट्राइंगल के अंदर वो क्या होगा 180 डिग्री, राइट। सो अब मैं बात करता हूं इस एंगल की, ये कितना है 90, ये हमें पता है। देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी ये OEL जो एंगल है ये भी हियर कैन बी रिटन एज OEL। सो बात करें व्हाट इज अबाउट एंगल LOE, राइट। सो यहां पे अगर मैं बात करता हूं एंगल LOE की, सो मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम क्या था 180। सो अगर मैं 180 में से अगर इस 90 डिग्री के एंगल को निकाल दूं, फिर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं एंगल OEL, या फिर यू कैन से OEL या LEO, राइट, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो मुझे पता है कि ये एंगल LOE की वैल्यू क्या होगी 180 में से अगर मैं इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूं, एंगल L और एंगल E को, सो वो किसकी वैल्यू होगी LEO की, राइट, यू कैन सी, राइट। सो LOE जो है ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 180 में से अगर मैं इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूं। सो 180 में से मैंने ये एंगल 90 माइनस किया, देन एंगल LEO माइनस कर दिया, राइट। सो 180 माइनस 90 कितना हो गया आपके पास 90 माइनस LEO। सो एंगल LOE की जो वैल्यू है ये वाला LOE, इसकी वैल्यू क्या होगी 180, जो कि तीनों एंगल्स का सम है, उसमें से अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को माइनस कर दूं, सो 180 माइनस ये एंगल 90 कितना हुआ 90 माइनस दिस एंगल LEO, तो ये LOE की इक्वल है। अब बात करते हैं इस एंगल LEO की। सो अगर आप देख सकते हैं ये LEO एंगल जो है वो MEO के इक्वल है, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल है। सो ये एंगल क्या है MEO। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन MEO at the place of LEO, because the reason is angle LEO is equal to MEO, that is given in the question, right? So AOQ और DOQ की बात करें, आप देख सकते हैं AOQ और DOQ ये एंगल you can see कहां पे बन रहे हैं, sorry AEQ, let me just correct that. So the angles were AEQ and DEQ, right? So ये जो एंगल्स हैं हमें इक्वल गिवन थे। So that means कि AEQ को मैं LEO बोल सकता हूं और DEQ को मैं MEO बोल सकता हूं, क्योंकि एंगल तो इन्हीं पे बन रहे हैं। So that means this is given here, or you can also write it as now LEO is equal to MEO, right? So this is given in the question. Now you can see angle LOE is equal to 90 minus angle MEO, right? So यहाँ पे ये हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। Now the next step will be, you can see, अब मैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने वाला हूं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, राइट। सो डूइंग द सेम थिंग हियर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज फर्स्ट इरेज द एग्जांपल। नाउ taking these two triangles, so in triangle LEO and triangle MEO, right? So यहाँ पे अब three conditions बताने हैं। Let me just redraw this triangle in a bigger way so you can see it clearly. So यहाँ पे ये 90 का है, you can see this is O, this is E, L and M, right? So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है हमें। So first condition will be angle LEO is equal to, let me just correct that, equal to angle MEO. So that is given in the question, you can see here. Then the second condition of this will be, ये जो OE है वो common है दोनों के अंदर, so OE is equal to OE, that is the common side of these two triangles. So यहाँ पे जो third condition होगी, let me just tell you, so that will be, you can see, अगर आप यहां तक देखें, यहाँ पे हमने 90 माइनस MEO को किसके इक्वल प्रूव कर दिया था LOE, यानी ये वाला जो एंगल था LOE वो 90 माइनस एंगल LEO के इक्वल था, है ना। देन आपने देखा LEO की जगह मैंने क्या रख दिया MEO, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल थे। सो 90 माइनस एंगल MEO आ चुका था एंगल LOE। सो अब बात आती है कि अगर मैं बात करूं कि 90 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया एंगल MEO, सो 90 माइनस MEO क्या होगा, आप देख सकते हैं ये वाला एंगल, दैट इज MOE, राइट। बिकॉज मुझे पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर इसका और इसका सम जो है, और इसका सम कितना होगा 180। सो 180 में से अगर मैं ये 90 माइनस कर देता हूं, यू कैन सी दिस एंगल 90 माइनस यू कैन सी एंगल MEO, सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल MOE। सो ये क्या कितना होगा 90 माइनस एंगल MEO,
सो 90 माइनस एमईओ किसके इक्वल है? एमओई के। सो आप जैसे 90 माइनस एमईओ किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एमओई, यानी कि एंगल एलओई और एमओई आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए यहां से। सो दैट मीन्स द थर्ड कंडीशन विल बी एंगल एलओई इज इक्वल टू एंगल एमओई। सो प्रूव्ड अबव, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सी, वी कैन राइट दैट कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो देयरफॉर ट्राइंगल, let me just write down, LEO is congruent to triangle MEO. So the reason, the congruency rule here, so what is the congruency rule? Let me just tell you. So यहाँ पे ये जो है side है, then you can see this is angle and this is angle. So angle side angle. So by ASA rule, these two triangles are congruent here, right? So यहाँ पे हमने ये दोनों triangles congruent prove कर दिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। सो आप देख सकते हैं ये जो OL जो है वो OM के इक्वल लिख सकते हैं हम, बिकॉज ये दोनों क्या है? साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। सो दैट मींस एंगल, सॉरी एंगल नॉट, सो दैट इज OL इज इक्वल टू OM। सो बाय CPCT द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो OL है वो किसके इक्वल है? OM के। नाउ रिमेंबर द थ्योरम 10.7 which says that if the chords have equal distance from the center, then the chords are of equal length. So ये हमें पता है from theorem 10.7. So that means let me first make some space here. That means now we can write, so from theorem 10.7 we know that the chords having equal distance from the center are equal in length, right? So that means अगर ये OL जो है वो OM के इक्वल है, यानी कि ये जो AB और CD हैं chords, इनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। तो अगर ये OL और OM जो कि इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से इन कोड्स का, देन बाय थ्योरम 10.7 वी नो दैट द कोड्स व्हिच आर हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि इन कोड्स की लेंथ भी अब क्या हो जाएगी? इक्वल, क्योंकि इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? इक्वल प्रूव कर दिया हमने बाय CPCT बाय टेकिंग दीज टू, you can see triangles congruent, right? So you can see that was all in this example. So students, as we have done the example based on theorem 10.7, so I hope now you understand how to actually apply the theorem on the question, right? So now let us move on to the exercise now. So the exercise 10.4, question number first is what I am going to discuss now. So let us just directly move on to this question, right? So in this question it is given that two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Now we have to find out the length of the common chord, right? So let me just explain you this question with the help of the diagram, right? So सबसे पहले हमारे पास क्या है? Two circles है of radius 5 centimeter and 3 centimeter. So आप देख सकते हैं एक 5 centimeter का circle है. You can see I have drawn a circle here. Then there's another circle of radius 3 centimeter. So you can see the difference between the size of these two circles. यानी कि ये 5 centimeter radius वाला circle है और ये 3 centimeter radius वाला circle है. Now both the circles intersect at 2 points. As we know that a pair of circles can intersect at maximum 2 points, right? So आप देख सकते हैं ये P और Q मैंने intersection points को name दे दिया. Now let me just join them. So ये जो PQ length आई है that is the common chord, right? यानी कि ये दोनों circle के लिए क्या काम कर रही है? Chord का काम कर रही है. बेसिकली इस circle के लिए भी एक chord है और इस circle के लिए भी ये एक chord है, right? Chord is simply when we join 2 points lying on the circumference of the circle, right? So you know that. So यहाँ पे P और Q इस सर्कल के ऊपर लाई करे थे, उससे ज्वाइन करके ये कोड का काम करेगी, और इस सर्कल के लिए भी P और Q इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई करे थे,
सो ये कोड का काम करेगी. सो दिस इज अ कॉमन कोड ऑफ दीज टू सर्कल्स, राइट. नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस सर्कल का सेंटर लिया O और इस सर्कल का O डैश. सो इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट मिल रही है मुझे, दैट इज O डैश, राइट. सो हियर यू कैन सी दिस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is given to us, that is 4 centimeter, right. So let me just write that here. So 4 centimeter is the distance between their centers. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O dash जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 4 centimeter. The distance between the center of these circles, right, that is given here. Also यहाँ पे रेडियस भी पता है हमें दोनों सर्कल्स की. So let me just now show you how to actually draw the radius. मुझे पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ परफेक्ट वे लाइक दिस, राइट. सो ये क्या है, आपके पास रेडियस है, और कितनी गिवन है हमें इस सर्कल की रेडियस, 5 सेंटीमीटर, दैट वी नो, राइट. सो आप देख सकते हैं ये सेंटर से इस पॉइंट P जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. नाउ दूसरे सर्कल की रेडियस हम कैसे शो करेंगे, यू कैन सी सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा लाइक दिस, सो ये क्या होगी, रेडियस होगी. एंड दैट इज आल्सो गिवन हियर कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर. सो मैंने 5 इसको दिया और 3 इसको दिया. यू कैन सी इट वेरी वेल कि ये बड़ा सर्कल है, सो दैट विल बी 5 एंड दिस इज द स्मॉलर, सो इट हैज स्मॉलर रेडियस 3 सेंटीमीटर, राइट. सो अब हमारे पास डायग्राम जो है कंप्लीट है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन कोड कौन सी है, PQ, जो दोनों सर्कल के लिए. सो यानी हमें ये PQ जो है इसको फाइंड आउट करना है, राइट. सो दिस इज द टास्क इन दिस क्वेश्चन. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर क्वेश्चन हियर. सो सबसे पहली चीज यहां पे आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, दैट इज OPO डैश. सो यहां पे अगर मैं इसको अलग से बना के दिखाऊंगा आपको, सो दैट विल बी लाइक दिस. सो यहां पे आप देख सकते हैं ये P पॉइंट है, ये O है, ये O डैश है. लेट मी जस्ट नाउ गिव दिस पॉइंट सम नेम, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को आपके सामने यहाँ पे L नेम दे देता हूं, सो दिस पॉइंट इज L, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू नेम अ वर्टेक्स हियर. सो ये पॉइंट क्या है, L. नाउ लेट मी जस्ट ऑल्सो ड्रॉ द लेंथ PL हियर, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PL जो है मैंने ड्रॉ कर दी. सो अब बात आती है कि ये जो डिस्टेंस है O डैश, हमें पता है दैट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल का वो हमें गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन 4 सेंटीमीटर हियर. देन टॉकिंग अबाउट दिस OP, सो ये भी हमें पता है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 5 सेंटीमीटर. एंड देन O डैश P अगेन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो यहां पे आप देखते हैं, हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, राइट. नाउ हमें ये भी पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. नाउ व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? सो वी नो बाय पाइथागोरस थ्योरम we have that, let me just correct that. So h square is equal to p square plus b square. ये हमें पता है कि hypotenuse जो साइड होती है, which is the largest side of the triangle, is its square is equal to the sum of the square of perpendicular and base, right? So यानी कि h square is equal to p square plus b square. Now अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें, so लेट मी जस्ट चेक कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, राइट. कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस होती है, दैट इज द लार्जेस्ट साइड, राइट. सो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल की बात करें, सो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5, 3 और 4 में से 5. सो इफ आई जस्ट अज्यूम इट एज h, राइट, देन यू कैन सी उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस आते हैं. सो यू कैन सी this looks like the base of this triangle, so let me just take it as a base. Then this will be the perpendicular. So अगर मैं इन h, p और b की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करूं, so h का स्क्वायर जो है अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ गया,
that means this triangle is a right angled triangle, right? So let me just first substitute the values here. So आप देख सकते हैं h की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, so 5 square is equal to p. So आपके पास p की वैल्यू कितनी है 3, so 3 square plus base की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 square. Now let me just check out that whether this side is equal to this side or not. So 5 का square क्या होता है आपके पास 25. So here you can see equal to 3 square. So 3 into 3 that is 9 plus 4 square that is 4 into 4 16, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 25 is equal to 9 plus 16. अब हमें पता है 16 plus 9 कितने होते हैं आपके पास 25 and here it is also 25. So आप देख सकते हैं 25 is equal to 25 यानी कि left hand side is equal to the right hand side. So it means कि hypotenuse का square जो है वो p square plus b square के equal है 25 equal to 25 यानी कि ये एक right angled triangle है. So let me just write down. So OP, let me just write it correct here. So OPO dash is a right angled triangle, right? So now we know that it is a right angled triangle यानी कि ये hypotenuse है, ये base है और ये perpendicular है. And we know that the angle between perpendicular and base is 90 degree, right? So if you just draw it in a better way, so that will be like this, right? So ये angle जो है कितना है 90 degree का, right? So अब हमें ये भी पता है कि 90 degree के सामने वाली side hypotenuse होती है, so that is exactly the correct situation. Now as we know that this is a right angle triangle, let me just now move on further. So उसके लिए मैं यहाँ पे question को erase करता हूं to make some space. So अब जैसा कि हमें ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू, वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? सो हाइट कैन ऑल्सो बी सेड एज द अल्टीट्यूड हियर. सो ये जो हाइट या फिर आप जिसको अल्टीट्यूड बोलते हैं ये बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल के अंदर सपोज कीजिए एक ये हाइट दिख रही है हमें, यानी कि ये बेस है और ये हाइट है, इस तरीके से भी बेस और हाइट यानी कि इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी ये वाली. बट अगर सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो यहां पे लेट मी जस्ट टेल यू कि इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइक दिस, सो हमें ये भी क्वेश्चन में पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. सो दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर ये काम करेगा यहां पे हाइट का. सो परपेंडिकुलर इज ऑल्सो नोन एज हाइट, यू नो. सो ये हाइट लेनी पड़ेगी एंड ये बेस लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली भी है और बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखने से पता चल रहा है कि ये भी एक हाइट ही है, राइट? सो हियर आप देख सकते हैं एक ही ट्राइंगल के अंदर बेस और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं ये भी हाइट का काम कर रही है एंड ये परपेंडिकुलर है. सो दिस इज ऑल्सो द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट? सो यानी कि एक सिंगल ट्राइंगल के अंदर दो पेयर हो सकते हैं बेस और हाइट के, राइट? सो यू कैन सी द बेस इज कॉमन बट हाइट आर डिफरेंट. सो दैट मीन्स देयर कैन बी मोर देन वन हाइट इन अ ट्राइंगल. सो जैसा कि यहाँ पे इस कंडीशन में भी हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर मैं ये बेस लेता हूं, यू कैन सी ओ डैश. सो ये बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट PL भी है, देन इस बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये P भी हो सकती है, बिकॉज वी नो दैट perpendicular is actually the height of the triangle, right? So यहाँ पे दो हाइट्स हैं, आप देख सकते हैं ये बेस और ये हाइट का एक पेयर रहेगा और ये बेस और ये हाइट का दूसरा पेयर रहेगा. So now we will find out the area of the triangle twice, यानी कि दो बार फाइंड आउट करेंगे. एक बार ये बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइट लेके और एक बार ये बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइट यानी कि परपेंडिकुलर को हाइट लेके, राइट? सो लेट मी जस्ट नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ triangle OPO dash. So we know that can be calculated by half into base into corresponding altitude or you can say height. So यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ half into base, तो कौन सा लूंगा मैं O dash, then height कौन सी ले लेता हूँ एक बार PL, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं O dash base हो गया और इसके corresponding पहले मैंने height कौन सी ली है PL, right? So you can see हमें PL की वैल्यू नहीं पता, so PL will be as it is. Now what is O dash? वो हमें पता है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, the distance between the centers of the two circle, that is the base. So यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ into
half, right? Now 2 2 ja 4, you can see cancel out हो गया, so that will be 2 into PL, that is 2PL. So let me just give it equation number first. So you can see यहां से मेरे पास area of triangle OPO dash क्या आ चुका है 2PL, यानी कि जब मैंने corresponding base की height कौन सी ली PL ली तो ये area आ रहा है, right? Now let me just move further here. So this time I'm going to find out again the area of this triangle, but base के corresponding height कौन सी लेने वाला हूं मैं, ये perpendicular, right? So then again you can see area of triangle OPO dash again can be calculated by half into base into height. So यहाँ पे you can see again half into base. Now this time again you can see base is OO dash, that is clear. But यहाँ पे height जो लूंगा मैं इस केस में, that is the perpendicular, right? So now this is O dash P. So let me just now substitute the values here. So O dash we can again see that is 4. We know then O dash P this time the height is 3, right? Now you can see 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Again this time this will cancel out. So 2 into 3 that will be 6 centimeter. Now this time you can see the area of triangle when we just take the perpendicular as the height corresponding to the base, then we get the area as 6 centimeter, right? Now you can see, let me just give it equation number second. Now देख सकते हैं equation number first और second में दोनों ही मेरे पास क्या है एक्चुअल में area of triangle OPO dash. So that means ये दोनों सेम ही होने चाहिए एरिया, बिकॉज भले आप ये बेस लें ये हाइट लें, भले आप ये बेस और ये हाइट लें, बट ट्राइंगल का एरिया तो हमेशा सेम ही होगा बिकॉज यही ट्राइंगल के एरिया को हम फाइंड आउट करें. सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आप देख सकते हैं ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल रख देंगे, हम इक्वेट कर देंगे. सो लेट मी जस्ट डू दैट. सो यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव यहां पे मेरे पास 2PL 2 into PL जो है, you can see 2 into PL और 2PL they are same. किसके इक्वल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट? नाउ यू कैन सी दिस 2 इज इन द मल्टीप्लाई, सो मैं इसको कहां शिफ्ट कर दूंगा, डिवाइड में. सो मेरे पास PL की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू कैन सी हियर दैट विल बी 6 upon 2. सो 2 3 is 6, so that will be 3 centimeters, right? नाउ यानी कि हमने यहां पे क्या फाइंड आउट कर लिया, इस हाइट को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 3 centimeter, right? Now let me just move to the task here. So हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था, जो कोड है PQ उसकी लेंथ. नाउ मैं आपको बता देता हूं, इफ यू जस्ट रिमेंबर द थ्योरम, द प्रीवियस थ्योरम दैट आई हैव टोल्ड यू व्हिच सेड दैट यू कैन सी दिस O dash is the perpendicular bisector of the common chord. If you just remember, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर्स जो होते हैं, दो सर्कल जब दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सो उनके जो सेंटर्स होते हैं वो किसके ऊपर लाई करते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. यानी कि आप देख सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर दोनों सर्कल के सेंटर्स लाई करते हैं, राइट? सो यानी कि हमें ये पता चल गया कि O डैश क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट? सो दैट मींस कि ये O डैश जो है ये PQ यानी कि जो कॉमन कोड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? सो यू कैन सी इट इज ऑन द 90 डिग्री एंड ऑल्सो बाइसेक्ट दिस कोड हियर PQ. सो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि हम ये सबसे पहले लिख लेते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट दैट. सो इफ आई जस्ट रब दिस लाइन हियर, यू कैन सी. सो वी नो when two circles intersect at 2 points, let me just correct that. So 2 points, then their centers lie on the, let me just change the marker, perpendicular bisector of common chord, right? So you can see here in this case the common chord is PQ. So now we know that
hence O dash is perpendicular bisector. So अब हमें पता है कि O dash अगर perpendicular bisector है, so now let me just make some space here. So that means कि O dash जो है वो PQ को bisect करेगा. This implies you can see that अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये PL था, you can see this PL. Now ये PL और LQ जो है वो आपस में इक्वल होंगे because ये bisect कर रही है लाइन. So यानी कि जो PQ है यानी कि पूरी कोड जो है वो क्या होगी, हाफ होगी किसके, PL के ट्वाइस हो जाएगी, राइट. यू कैन सी 2 into PL. मुझे पता है ये PQ पूरी लेंथ क्या होगी, इस PL की डबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. सो आधा आधा मिला के ये पूरी बन रही है. सो ये पूरी लेंथ क्या होगी, इस PL की डबल होगी, राइट. सो यानी कि PQ जो लेंथ कॉमन कोड की हमें फाइंड आउट करनी है वो कैसे निकलेगी, इस PL की डबल करके, बिकॉज हमें पता है PL और LQ आपस में इक्वल है क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों को, इस पूरी लाइन को दो पार्ट्स में. सो यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है. सो अगर इसका डबल करूंगा सो दैट विल गिव मी द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड विच इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट. सो ये कॉमन कोड PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ PL, राइट. सो आप देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ PL एंड वी had find out, you can see PL here, you can see that is 3 centimeter. So इस 3 centimeter का डबल कर दूंगा. So 2 into 3 centimeter, that will be 6 centimeter. So आप देख सकते हैं this has given us the length of the common code PQ which is required in the question, right. That has been asked in the question, right, to find out the length of the common code, right. So you can see with the help of this theorem again, you can see we had came to a conclusion that the length of this common code will be 6 centimeter, right. So this is how you have to solve the first question of this exercise.